Good morning to all present over here. Myself, Dr. Raghavendra Patidar, Convener Institutions Innovation Council, Global Institute of Technology, welcomes you all audience present here. You all aware that today we are organizing the motivational talk by successful startup founder Mr. Dipanshu Khandelwal. This session has a sole objective to generate awareness and skills on innovation, startup ecosystem, and entrepreneurship. The purpose of this session is to acquire necessary knowledge and skills required for organizing and carrying out entrepreneurial activities. Also, to develop the ability of analyzing and understanding business situations in which entrepreneurs act and to master the knowledge necessary to plan entrepreneurial activities. By not taking so much time, let's start the session by introducing our successful startup founder, Mr. Dipanshu Khandelwal. Mr. Dipanshu is CEO of Catalyst Atal Incubation Center. The mission of Catalyst is to support entrepreneurs that create scalable and efficient technology solutions for the untouched and underserved segment in India. He has previously worked under government advisory services to help state government to frame policies and initiatives around IT and startups. His expertise stems for our 5 years of on-ground startup and technology experience and editing penning of our 20,000 data-driven stories on technology and startups. By the virtue of being a media entrepreneur, he is also helping in investment facilitation and industry connections, primarily for upcoming businesses through a deep network developed over past years. So I am pleased to welcome you, sir. Over to you. Thank you, and thank you all. I believe these are all students who are joining the session. So thank you all for joining. And I do not want to, make it like a boring one-sided session. So before I begin, I just want to, by a show of hands or on chat, maybe you guys can just quickly mention what is the preferred mode of language you prefer. Should I speak in English, Hindi, or a mix of both? You can just put it on chat, all the students who are there, and I will then follow that particular language. Is it English code, or should I speak English, Hindi, or Hindi, whatever? Raghavendra ji, what do you suggest? How should we go? Sir, as you wish. There is no issue. You can keep session in Hindi or in English. Yeah. There is no issue. So people have said mix, so I think that makes sense. So मैं इसको English Hindi दोनों का mix रखूंगा, so that it is understandable to everybody. जो भी यहाँ पर present है. Right. So good morning, students. Before I begin, मैं आपको एक चीज बता दूं. I never want to call myself successful. ठीक है? And the reason is कि कभी भी खुद को सक्सेसफुल बोलना नहीं चाहिए. कि 95% किया है शायद, और मुझे 100. I feel begin session self. Dipanshu sir, you have
Am I audible? Raghavendra ji, am I audible? Yes, sir, you are audible. Hello? Yes, sir, you are audible, sir. Okay, great, great. ठीक है. So as I was saying, जैसा मैं आप सबको बता रहा था, सबसे पहले हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं. I do not call myself successful, and my suggestion to all of you is कि no matter कोई भी गोल आप अचीव करें, कोई भी जगह आप जाएं, कितना भी आप बिजनेस कर लें, पैसा कमा लें, never consider yourself successful. Always consider कि हाँ यार मैंने 1% कुछ अचीव कर लिया, but अभी 100% बाकी है. Keeping that aside, मैं इस सेशन को शुरू करूंगा फ्रॉम माय जर्नी, जो मैंने अभी तक किया, आप लोगों को बताऊंगा, बिकॉज उसमें से काफी सारे इंस्टेंसेस होंगे जो आप रिलेट कर सकते हैं. बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, और मैंने भी इंजीनियरिंग करी हुई है. तो आई थिंक आप लोग को थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा वो व्हेन आई स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. और फिर धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा कि वेरेवर वट एवर आई एम डूइंग टूडे, उसका क्या क्या इशू है, एंड हाउ आई बीन एबल टू डू दैट. ठीक है. I think Raghavendra ji, some of the students are saying that my voice is not clear. Is it clear at your end? Yes, sir, it is clear. There may be the network issue for particular. Okay, great. Right. So I will begin. Around 2010 या 9 में आपने एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, बंसल क्लासेस. ठीक है, सबने सुना होगा, आप में से शायद कईयों ने ज्वाइन भी किया होगा. मैंने वो ज्वाइन किया फॉर इंजीनियरिंग. ठीक है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन्हीं किसी तरह के इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं. अब आजकल तो उस इंस्टीट्यूट का पता नहीं क्या सिचुएशन है, बट तब इट वाज वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स व्हेन यू हैड टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी, जेईई एंड ऑल दैट. तो 2009 में मैंने बंसल क्लासेस ज्वाइन किया टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी, जेईई. ठीक है. उस 2 साल मैंने वहां प्रिपरेशन करी. 2011 में आई अपीयर्ड फॉर आईआईटी, जेईई. हमारे टाइम का अराउंड 230 सम कट ऑफ गया था. आई गॉट अराउंड 225 एंड आई कुडंट गेट सिलेक्टेड इनटू any of these IITs. ठीक है. एक किसी NIT में सिलेक्शन हुआ था, but I was getting chemical engineering and all, so again that was not very interesting. Then I joined SRM University. चेन्नई की एक काफी renowned university है, आपने I think सुना होगा आप सबने नाम. तो I joined SRM University for engineering, and I got electronics and communication engineering as my preferred branch there. अब वहां पर क्या इशू हुआ कि जैसा आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, आई एंटर्ड अ पर्टिकुलर कॉलेज. वहां पर हमने नया नया कॉलेज देखा, इंजीनियरिंग ज्वाइन करी और अपनी पढ़ाई शुरू करी. और आई थिंक जैसे कि सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम पे भी और उस टाइम पे भी था, इंजीनियरिंग करनी है इसलिए शायद कर ली. उस टाइम नहीं पता था कि इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है या क्या करना है. राइट. तो आई जॉइंड इंजीनियरिंग. फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट अ लॉट ऑफ आर सीनियर्स एंड ऑल, उनका प्लेसमेंट्स चल रहे थे. जो हमारे थर्ड फोर्थ ईयर के सीनियर्स थे, उनके प्लेसमेंट्स चल रहे थे, एंड दे वर गोइंग टू आईटी कंपनीज और इस सब जगहों पर वो लोग जा रहे थे. ठीक है. आईटी कंपनीज में गए, वहां पर वही जो मास प्लेसमेंट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर पैकेज में होते हैं, वो सारे प्लेसमेंट्स हम कर रहे, वहां पर उन लोगों के चल रहे थे. एंड आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ दिस, एंड आई रियलाइज्ड कि यार somehow ना, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू. ठीक है. ठीक है, जॉब शायद लगे नहीं लगे, किसी ढंग की जगह लगे नहीं लगे, बट ये तरह का आईटी की साइड में जाने का, प्लेसमेंट से आईटी की साइड में जाने की चीज मुझे नहीं करनी है. अच्छा, उस टाइम तक दिस इज फर्स्ट ईयर, मुझे एज सच कोई बहुत ज्यादा कंप्यूटर साइंस या कोडिंग या इस सब की नॉलेज नहीं थी. मैंने 8th-9th क्लास में वेबसाइट वगैरह बनाते कैसे हैं और क्या क्या करते हैं वो सब पढ़ना शुरू किया था, और कुछ बनाया भी था, बट हार्डकोर कोडिंग की एज सच मुझे कोई नॉलेज नहीं थी. सो फर्स्ट ईयर में डिसाइडेड कि यार फोर्थ ईयर के एंड में ना इस तरीके से मास रिक्रूटमेंट में नहीं बैठना है. आई डू नॉट वांट टू डू दिस, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड लाइक टू गो अहेड विद. कि वही बेसिक सी एक आईटी जॉब कर ली और वहां पर फिर आप प्लेस हो गए, फिर आप 3-4 साल तक अपने इंक्रीमेंट का वेट करते रहो एंड ऑल दैट, वो मुझे नहीं करना था. सो फर्स्ट ईयर में, एंड दिस इज 2012, उस टाइम पे इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम वाज नॉट वेरी मैच्योर्ड as it is today, as it is at times like you. इतने सपोर्ट सिस्टम्स, इतना गवर्नमेंट सपोर्ट, इतना ज्यादा मीडिया अटेंशन, ये सब स्टार्टअप्स पे नहीं था. अ लॉट ऑफ पीपल, उस टाइम लोगों को पता भी नहीं था स्टार्टअप्स क्या होते हैं, मुझे भी नहीं पता था कि स्टार्टअप क्या है. यूएस वगैरह में उस टाइम बूम था, बिकॉज यूएस में उस टाइम एक रिसेंट फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2009 का, जिसके बाद वापस से इकोनॉमी ने बिल्डअप करना शुरू किया था, और वहां पर ये नए बिजनेसेस काफी ज्यादा उभर के ऊपर आने लगे थे. एंड 2011-12 में व्हाट्सएप वगैरह भी उतना पॉपुलर नहीं था. फेसबुक स्टार्टेड बिकमिंग पॉपुलर इन इंडिया
और ये व्हाट्सएप वगैरह भी कोई ऐसा नहीं है आज जैसे है कि हर जना व्हाट्सएप यूज करता है। आज से 10-11 साल पहले व्हाट्सएप वाज नॉट दैट पॉपुलर, बहुत लिमिटेड लोग इंडिया में व्हाट्सएप को यूज करते थे। तो दिस इज दैट टाइम व्हेन स्टार्टअप टर्म वाज नॉट वेरी पॉपुलर, पीपल डिड नॉट नो व्हाट स्टार्टअप इज, और बहुत ज्यादा कोई किसी को आइडिया भी नहीं था क्या होता है, मुझे खुद भी आइडिया नहीं था। सो व्हाट आई डिसाइडेड इज, मैंने सोचा कि यार कोडिंग सीखना जरूरी है, because going forward and even this holds true even today, कि if you want to jumpstart your career and if you want to do something really different and something really good, then आपको hardcore language में किसी coding आना it's a bit important अगर आपको technology field में कुछ करना है। तो I started learning coding, और मैंने उस टाइम पे बेसिक जो आपकी लैंग्वेजेस होती हैं वो पढ़ना शुरू किया, और काफी जल्दी मैंने ग्रास्प कर लिया बिकॉज दैट वाज अ एडवांटेज विथ मी। और उस टाइम पे इन सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल, मैं कंपनी तो नहीं बोलूंगा, बट इट वाज मोर लाइक एन इनिशिएटिव वेयर आई वाज डिजाइनिंग वेबसाइट्स फॉर सम एक्सटर्नल पीपल। अपने कॉलेज की फेस्ट की वेबसाइट डिजाइन करना, किसी बुक पब्लिशर कंपनी की वेबसाइट डिजाइन करना एंड ऑल दैट। और उस टाइम मेरा मोटिव ये था कि जो भी कॉलेज के खर्चे हैं वो हम थोड़ा और लैविश तरीके से निकाल लें, राइट? क्योंकि कॉलेज में हर जने को घर वाले लिमिटेड पैसे देते हैं, आप अमीर हो गरीब हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज में हर बच्चे को लिमिटेड पैसा घर वाले देते हैं पॉकेट मनी के लिए, और मुझे था कि यार थोड़ा लैविशली कॉलेज लाइफ निकालनी है तो इन सब चीजों से पैसे कमा लेते हैं। दैट इज हाउ मैंने एक वेबसाइट वहां पर अपने कॉलेज में बनाई जिसका नाम था द टेक पोर्टल करके। इस वेबसाइट का प्लेन एंड सिंपल मोटिव ये था कि हमारे एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई में रिसर्च बहुत स्ट्रांग था, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज की रिसर्च होती थी उसकी एक्सेस हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती थी, बिकॉज फॉरेन यूनिवर्सिटीज की रिसर्च को एक्सेस करने के लिए आपको उनका सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको थोड़ा कुछ पे करना पड़ता है, और उतना ईजी नहीं है उनकी रिसर्च को एक्सेस करना। तो उसके लिए आई डिजाइंड अ वेबसाइट जहां पर आई वांटेड टू पूल ऑल ऑफ दीज रिसर्चेस फ्रॉम एवरीवेयर एंड पुट इट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म जहां पर हमारे स्टूडेंट्स उसको एक्सेस कर सके। तो ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, मैंने इसके लिए सारी यूनिवर्सिटीज अराउंड उस टाइम मैंने 100 या 120 यूनिवर्सिटीज को अपने ईमेल आईडी से रीच आउट किया कि आई एम अ स्टूडेंट इन दिस कॉलेज इन इंडिया, और हमें ये एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहां पर हम आपकी रिसर्च को डालना चाहते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को एक्सेस मिल सके जो रिसर्च आप वहां पर कर रहे हैं। उस 120 में से आई थिंक 10-12 यूनिवर्सिटीज ने रिप्लाई किया, बाकी ने तो रिप्लाई नहीं किया। 10-12 ने रिप्लाई किया, 5-6 ने एग्री किया कि ठीक है आप हमारी ये रिसर्च पकड़िए। उन्होंने मुझे एक रिपोजिटरी दी, उन्होंने कहा आप ये अपलोड कर सकते हैं एंड यू कैन मेंशन दैट दिस हैज बीन अपलोडेड आफ्टर परमिशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। मैंने वो अपलोड कर दी। अपेरेंटली वो प्लेटफॉर्म काफी पॉपुलर हो गया कॉलेज के अंदर, ठीक है, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर विजिटिंग इट। और उस प्लेटफॉर्म में इट वाज अ कंप्लीटली HTML एंड PHP बेस्ड प्लेटफॉर्म, और उसको पूरा कंप्लीटली हैंड मतलब स्क्रैच से कोड करा था मैंने उसको, एंड उसको हमने काफी पॉपुलर कर दिया। फिर वहां पर हमारे कॉलेज में कुछ टेक्निकल सोसाइटीज थी, उनके साथ पार्टनर किया, उनको भी लगा कि हाँ ये अच्छी चीज है, इसमें हम भी पार्टनर करते हैं, तो दे ऑल्सो पूल्ड इन देयर रिसोर्सेज। और फिर हमने IITs NITs सबकी रिसर्च डालना शुरू किया, इट बिकेम अ वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हमारे कॉलेज में। तब वहां पर क्या हुआ कि वन ऑफ माई स्कूल सीनियर्स अप्रोच्ड मी, उनको भी ये प्लेटफॉर्म किसी तरीके से पता चला होगा, एंड ही टोल्ड मी कि यार इससे ना हम एक बिजनेस बना सकते हैं, एंड ही टोल्ड मी कि इससे आप एक हम एक स्टार्टअप बना सकते हैं। मुझे स्टार्टअप्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, बिजनेस क्या होता है। मैं सोच रहा था मैं तो अभी 20 साल का भी 19-20 साल का हूँ, मैं क्या बिजनेस बनाऊंगा, आई मीन आई एम टू यंग टू क्रिएट अ बिजनेस एंड ऑल दैट। तो ही टोल्ड मी कि वो मेरा जो सीनियर था 1 साल सीनियर था, और उसने जस्ट CA कंप्लीट किया था, तो ऑब्वियसली उसको सारी लीगैलिटीज और ये अकाउंटिंग एंड ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज पता थी। तो ही टोल्ड मी कि नहीं हम इससे एक बिजनेस बना सकते हैं एंड दिस कैन बिकम समथिंग बिग, ठीक है। तो ऐसे ठीक है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी फॉर्म्ड अ कंपनी एंड 2014 में हमने उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया। 2013 में काम शुरू कर दिया था, 2014 में हमने ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट किया। बट ही सजेस्टेड कि यार ये अभी एक बहुत लिमिटेड चीज है विद इन अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड स्कूल, तुम इसको तो बंद कर दो या इसको चलने दो जैसे ये चल रहा है, हम एक नया प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो एक न्यूज प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है। अब आप समझना कि कितना बड़ा चेंज था मेरे लिए। उन्होंने बोला कि यार न्यूज प्लेटफॉर्म बनाते हैं बिकॉज इंडिया में टेक्नोलॉजी न्यूज को लेके अभी भी कोई बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हार्डकोर टेक्नोलॉजी न्यूज आती है। गैजेट्स के बारे में सब लिखते हैं, स्मार्टफोन के बारे में सब लिखते हैं,
टैबलेट्स के बारे में लिखते हैं, टीवी के बारे में लिखते हैं, लेकिन गैजेट्स टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी में और बहुत कुछ है। उस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ये सब अप एंड कमिंग टर्म्स थे। तो ही टोल्ड मी कि अपन ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं न्यूज का जिसमें इस तरह की हार्डकोर टेक्नोलॉजी कवरेज होगी, लेकिन इंडियन यूजर्स के पर्सपेक्टिव में, ताकि इंडियंस उसको समझ पाए, इंडियंस उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए कि वो क्या है। मैंने कहा ठीक है, आइडिया तो अच्छा है, बट न्यूज व्यूज क्या, जर्नलिस्ट तो बन नहीं सकता मैं, मुझे तो जर्नलिज्म आता ही नहीं क्या होता है, राइट। और ये तो पूरा प्योर प्ले जर्नलिज्म वाली बात हो गई। तो देन वी डिसाइडेड कि ठीक है, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मुझे टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, मेरे साथ कुछ 2-3 और मेरे जूनियर्स थे जिनको अच्छी हार्डकोर टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी। हम लिखना शुरू करते हैं एंड लेट्स सी क्या ट्रैक्शन मिलता है। ठीक है, कोई जर्नलिस्ट नहीं, कोई किसी के पास कोई जर्नलिस्ट बैकग्राउंड नहीं, कोई किसी को पता नहीं न्यूज क्या होती है। हमने सिर्फ जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आने लगी उस पर आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए एंड दैट्स हाउ इट बिकेम अ न्यूज प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब दिस वी स्टार्टेड इन नवंबर, और उसमें क्या फिर थोड़ा ट्रैफिक आने लगा तो हमने थोड़ा एड्स वेड्स भी डाल दिए, तो कुछ 5-7 हजार 10 हजार रुपए महीने का हम उसमें से रेवेन्यू आने लगा हमको। इट्स अ वेरी इनसिग्निफिकेंट रेवेन्यू, बट आप ये सोचो कि मैं कॉलेज में था और मुझे बेसिकली कोई खर्चा नहीं था, ये तो सिर्फ एक तरीके का एडिशनल इनकम हो रही थी मेरी। तो हमने कहा ठीक है यार, 8-10 हजार रुपए आ रहे हैं तो अब हम 2-4 इंटर्न हायर कर लेते हैं। कुछ जूनियर्स को 2-3 हजार रुपए महीने का दे देंगे, वो भी कंटेंट लिखेंगे, वो भी अच्छी चीजें लिखेंगे, और उससे हमारा कंटेंट बढ़ेगा। तो ये करते करते सितंबर में समहाउ हमारा अराउंड 50,000 पर मंथ पेज व्यूज का ट्रैफिक हो गया, विच इज अ सिग्निफिकेंट ट्रैफिक। इवन टुडे 50,000 व्यूज मंथली इज अ सिग्निफिकेंट ट्रैफिक, और वो ट्रैफिक हमें तब मिलने लग गया। तो हमने सोचा, देन माय स्कूल सीनियर जो मेरे साथ इसमें पार्टनर थी सजेस्टेड कि यार अब टाइम आ गया है, अपन एक्सटर्नल फंड रेज करते हैं। अब मैंने सोचा यार मैं किसी और से पैसे क्यों लूं, और व्हाट डज दिस मीन एक्सटर्नल फंड रेज करते हैं। तो ही गेव मी एन एंटायर आइडिया कि यार देखो, आजकल स्टार्टअप्स कुछ लोग कर रहे हैं, और उसमें कुछ एक्सटर्नल लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी में कुछ इक्विटी लेते हैं। ये सारी टर्म्स मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और ये सारी टर्म्स उसने मुझे समझाई। मैंने कहा तो मतलब बेसिकली हमें वो पैसे लौटाने नहीं। देखो, एज अ स्टूडेंट मेरे दिमाग में तो सबसे पहले यह है कि यार कोई पैसे देगा तो वो लौटाने तो नहीं है ना, खर्च हो गए कल को। तो इसे नहीं, लौटाने नहीं होते, उसके बदले वो इक्विटी लेते हैं हमारी कंपनी में, और इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाता है। आजकल के स्टूडेंट्स के लिए ये सब चीजें कंपैरेटिवली इजी हैं, बिकॉज हम न्यूज में ये सब पढ़ते हैं और आपको बेसिक नॉलेज होती है। हो सकता है कुछ को ना हो, बट जनरली सबको होती है। बट आज से 10 साल पहले दिस वॉज नॉट वेरी मेन स्ट्रीम, स्टार्टअप्स एंड ऑल ये सब बहुत मेन स्ट्रीम नहीं था। फ्लिपकार्ट भी उस टाइम जितना अभी है उसका 10% भी नहीं था। फ्लिपकार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 7-8% होगा। बहुत कम लोग फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते थे। किसी का अगर फ्लिपकार्ट पे अकाउंट है तो हम कॉलेज वाले सारे उसी के अकाउंट से ऑर्डर करते थे, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड किया अच्छा फ्लिपकार्ट पे तेरा अकाउंट है तो तुम वहां से ऑर्डर करते हैं। मतलब इट वॉज दैट काइंड ऑफ अ टाइम। तो मैंने कहा ठीक है, बट हमें कोई पैसे क्यों देगा। मैं तो पूरे टाइम ये सोच रहा था कि ठीक है, मेरा सीनियर है बोल रहा है कुछ, हम पार्टनर है, मेरा पार्टनर बोल रहा है, बट कोई हमें पैसे क्यों देगा। मतलब व्हाई वुड समबडी इन्वेस्ट देयर मनी एंड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। और तब मुझे इक्विटी की वैल्यू नहीं पता थी। मुझे लगा ठीक है, इक्विटी लेनी ले ले, पैसे तो ले नहीं रहा है, फ्री की इक्विटी ले रहे ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी इक्विटी लेनी ले लो, कोई इशू नहीं है। फिर माय डैड इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड उन्होंने समझाया कि ये जो तुम करने जा रहे हो, ये कंपनी की इक्विटी दे रहे हो, इट्स अ वेरी वैल्यूएबल थिंग। कल को अगर ये कंपनी बड़ी बन गई तो ये इक्विटी बहुत वैल्यूएबल हो जाएगी। तो तब वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू फ्यू इन्वेस्टर्स इन जयपुर। हमने जयपुर में इन्वेस्टर्स भी नहीं, हमें लिंक्डइन, उस टाइम मैंने लिंक्डइन ज्वाइन कर रखा था 2011 या 12 में। लिंक्डइन शायद इंडिया में आया था, और उसी टाइम मैंने ज्वाइन कर दिया था। आई वाज अमंग द वेरी फर्स्ट यूजर्स लिंक्डइन पे, बिकॉज आई वाज क्यूरियस कि नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया है, क्या चीजें देखते हैं। तो लिंक्डइन पे मैंने क्या किया, जो जयपुर के कुछ रिच लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके बारे में मैंने रिसर्च करी, उनको मैंने ढूंढा लिंक्डइन पे, कि जिनके कुछ बिजनेस हो या जिनका कुछ बड़ा बिजनेस हो या कुछ हो, और उनको मैंने रीच आउट करना शुरू किया कि हम ये चीज कर रहे हैं, आप हमें इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या। उनमें से एक का रिप्लाई भी आ गया कि हाँ, ये इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, और हम राजस्थान में एक नया एंजल नेटवर्क शुरू कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था एंजल नेटवर्क और क्या होता है। उन्होंने कहा कि हाँ, हम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग आके हमें पिच दो। हमने जाके पिच दी, और उस पिच में अपेरेंटली एक ही पिच में उनको हमारा आइडिया अच्छा लगा, एंड दे इन्वेस्टेड, एंड दैट इज हाउ माय स्टार्टअप ब्लू बॉक्स मीडिया, जिसका मैं अभी भी फाउंडर हूँ, दैट पर्टिकुलर कंपनी स्टार्टेड। वी स्टार्टेड एज अ मीडिया कंपनी, और हमारा एम ये था कि ये जो ट्रेडिशनल मीडिया कंपनीज हैं, जो ये सारे उसी तरीके से न्यूज कर रहे हैं, उसी तरीके से यू नो
न्यूज का डिसिपेशन कर रहे हैं उसको चेंज करना जरूरी है, बिकॉज यूथ को इस तरह की न्यूज समझ नहीं आती है। एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड अ मीडिया कंपनी। धीरे धीरे करके मैं सीखता गया कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे स्टार्टअप्स को कवर करने लग गया। तो हमने देखा कि अच्छा स्टार्टअप्स क्या होते हैं, किस तरीके से फंड रेज होता है। मैं भी सीखता गया, जैसे जैसे हमने न्यूज डालते गए तो उस प्रोसेस में हम भी सीखते गए। और फिर जैसे तैसे करके हमें अपना सेकंड इन्वेस्टमेंट मिला और फिर हमें अपना थर्ड इन्वेस्टमेंट मिला। तो टोटल 3 राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हमने अपनी कंपनी में रेज किए, एंड ऑल फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स, और बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। अराउंड 2016 की बात है। 2016 मिड में वी वर एट द पीक ऑफ आवर बिजनेस। अराउंड वी हमारा अराउंड 3 to 4 lakhs मंथली ट्रैफिक था, एंड वी वर कंपीटिंग विद टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ऑल दीज पीपल उनके टेक सेक्शन से, बिकॉज हमारा उनसे भी ज्यादा ट्रैफिक हो गया था एक टाइम पे। उस टाइम पे हमें एक बड़े मीडिया कंपनी ने अप्रोच किया कि वी वांट टू एक्वायर यू। आई कांट टेल देयर नेम, बट इट वाज अ वेरी बिग मीडिया कंपनी जिन्होंने हमें बोला कि हम आपको एक्वायर करना चाहते हैं जो आपने क्रिएट किया है, और उसके लिए हम आपको कुछ XYZ अमाउंट देंगे, और आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करो एज हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवीजन जो ये पर्टिकुलर कंपनी चलाएगा। हमने कहा ये तो बहुत जबरदस्त बात है कि कोई हमें एक्वायर करना चाहता है, और कोई हमें इतनी बड़ी मीडिया कंपनी हमें एक्वायर करना चाहती है। लिस्टेड मीडिया कंपनी थी जिनका स्टॉक मार्केट पे शेयर चलता है, वो हमें शेयर्स भी दे रहे थे, बहुत सारा पैसा दे रहे थे, एंड एट द सेम टाइम वो हमें इस डिवीजन का हेड भी बना रहे थे कि ठीक है आप लोग इस कंपनी को आगे जाके हेड करना। तो ये सब जब हो रहा था पीक में, दैट इज व्हेन द बिगेस्ट आई वुड से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड विद अस। हमने अपने इन्वेस्टर्स को ये चीज बताई और हमारे इन्वेस्टर्स ने मना कर दी। दे सेड कि नहीं, हम एक्विजिशन अप्रूव नहीं कर सकते, हमें लगता है कि आप लोग और हायर ग्रो कर सकते हैं और इसमें हमें और बेटर रिटर्न मिल सकता है। बहुत टाइम तक नेगोशिएशंस हुए, बहुत टाइम तक हमने बातचीत करी, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अल्टीमेटली उस कंपनी ने बोला कि ठीक है फिर हम एक्विजिशन कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी तरफ से एग्रीमेंट नहीं आ रहा है। एंड दैट वाज माय फर्स्ट बिग लर्निंग इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम, और इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप कभी भी ध्यान रखना, जब भी कोई सक्सेसफुल, मैं तो सक्सेसफुल नहीं बोलूंगा, बट जब भी कोई सक्सेसफुल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर या कोई भी बिजनेसमैन आपसे बात कर रहा है, तो बहुत जरूरी है कि आप उनके अप्स एंड डाउन्स दोनों को समझो। सिर्फ अप्स एंड अप्स को समझ के आप मोटिवेशनल हो जाओगे, आप इंस्पायर हो जाओगे और आप कल को शुरू कर दोगे, बट आपने डाउनफॉल अगर नहीं समझे उस पर्टिकुलर पूरे बिजनेस के या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, तो आपको कभी भी नेगेटिव्स पता नहीं चलेंगे। और किसी भी चीज को करने के लिए हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बहुत प्रॉपरली पता होने चाहिए, अदरवाइज हम किसी भी चीज को सक्सेसफुली नहीं कर सकते। आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करूंगा बट बीच में एक छोटा सा एग्जांपल लो। मान लो आप कोई स्मार्टफोन खरीदते हो, आप कितनी रिसर्च करते हो उस स्मार्टफोन पे कि यार एंड्रॉइड लेना है या iOS लेना है। अच्छा iOS में ये दिक्कत है, एंड्रॉइड में ये दिक्कत है, XYZ, किसी में सिक्योरिटी अच्छी है तो किसी में कस्टमाइजेशन अच्छा है, बहुत तरह के आप प्रोज एंड कॉन्स निकालते हो। तो जब आप एक स्मार्टफोन लेने में इतने प्रोज एंड कॉन्स निकालते हो, तो क्या हमें नहीं लगता कि हमें एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल करियर स्टेप ले रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, तो हमें उसमें भी बहुत ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स करने चाहिए। तब जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जो करना है वो सही है नहीं है। 2016 में मुझे फर्स्ट टाइम ये रियलाइज हुआ कि यार मैं जो करता जा रहा था, हम करते जा रहे थे, वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमने शायद रेवेन्यूज पे कभी उतना फोकस नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। वो आजकल भी बहुत सारे स्टार्टअप्स ये मिस्टेक कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा फंडिंग तो मिल रही है बट रेवेन्यू किसी के पास नहीं, रेवेन्यू में कोई सॉलिड नहीं है, राइट। तो हमने ये मिस्टेक 2016 में या 2017 में रियलाइज करी। 3 साल हो गए थे हमारी कंपनी को, हमने काफी सारा पैसा इन्वेस्टर से ले लिया था, बट रेवेन्यूज हमारे पास बहुत स्ट्रांग नहीं थे। और रेवेन्यू का मतलब सिंपल है कि हम पैसा कमा कम रहे थे, लेकिन हमारी रीच और हमारी जो ट्रैफिक था वो बहुत ज्यादा था। तो अगर हमारा 4 लाख ट्रैफिक है मंथली, उसके बदले में अगर हमारा 8 से 9 लाख रुपए का रेवेन्यू होना चाहिए था मंथली, तो हमारा वो रेवेन्यू नहीं था, हमारा उसका 20% रेवेन्यू था, विच वॉज अ बिग ब्लंडर दैट वी फेस्ड। अब वो एक्विजिशन वाली जो पूरी डील थी, उसके कैंसिल होने से रियलाइज ये हुआ कि यार हमें तो अब अपने रेवेन्यूज पे चलना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हमें मुश्किल है मिलना, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यूज नहीं है। तो हमें अपने रेवेन्यूज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि हम अपनी कंपनी को सस्टेन कर पाए। और तब जाके हम लोगों को अपना पहला लेसन मिला कि एक स्टार्टअप भी एक बिजनेस ही है। ये मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, स्टार्टअप एक नया टर्म है, लेकिन वो है बिजनेस ही।
जैसे किसी भी बिजनेस में रेवेन्यू आना जरूरी है, तभी आप खर्चे कर सकते हो, तभी आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। किसी भी स्टार्टअप में भी रेवेन्यू आना जरूरी है। अगर आपका रेवेन्यू नहीं आएगा तो इन्वेस्टर के पैसे से आप कुछ महीने या कुछ साल चल सकते हो, उसके आगे आप नहीं जा पाओगे। सो द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ माई लाइफ एट दैट पॉइंट इन टाइम वॉज स्टार्टअप इज ऑल्सो अ बिजनेस। जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, हमें भी रेवेन्यू लाना जरूरी है, हमें भी अपने एक्सपेंसेस देखना जरूरी है, हमें भी ये इंश्योर करना जरूरी है कि हम स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम बनाएं। बाकी सब तो अपने आप होता रहेगा, लेकिन एक स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम होना जरूरी है। तो 2016-17 में ये सब हुआ, मुझे रियलाइजेशन हो गया। लेकिन रियलाइजेशन से क्या होता है? रियलाइजेशन से कोई इमीडिएट रेवेन्यू तो आने लग नहीं जाएगा, हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कुछ नहीं था। उस टाइम मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में भी काफी डिस्प्यूट हो गए इस चीज को लेके। एंड देन वी रियलाइज किया ठीक है, हम साथ में शायद ये नहीं कर पाए। आई परचेज दिस एंटायर इक्विटी। जो भी मेरे पास उस टाइम पैसे थे या मेरी सेविंग्स थी, मैंने उसकी इक्विटी परचेज करी फॉर सम अमाउंट एंड सम वैल्यू, और पूरी कंपनी मैंने अपने पास ले ली अलॉन्ग विथ माई इन्वेस्टर्स जो मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। और मैंने कहा कि यार स्लोली एंड ग्रेजुअली सही, मैं इस कंपनी को फिर से बिल्ड करूंगा और मैं इसको फिर से रेवेन्यू फोकस्ड कंपनी बनाऊंगा रेदर देन नंबर्स या फिर ट्रैक्शन फोकस्ड कंपनी। ठीक है, तो 2017 में एक तरीके से आप समझ सकते हो मैंने स्क्रैच से शुरू किया। हमने सब कुछ बंद किया, मैंने कहा सब कुछ बंद करो, सारी चीजें बंद करो। मैं ड्राइंग बोर्ड पे बैठा और मैंने कहा अभी ये देखना है कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है और उस चीज को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि यार अगर मैं सिर्फ ये करूंगा तो शायद मेरे, और ये मेरी दूसरी लर्निंग है, शायद मेरी जो पर्सनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना एक चीज, आपको लाइफ में कुछ भी करना हो, ठीक है, चाहे आप स्टार्टअप करो, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप स्टार्टअप जॉब दोनों करो, जो भी आपको करना है, हमेशा ध्यान रखना जब तक आपकी पर्सनल फाइनेंशियल आपके दिमाग में स्टेबल नहीं रहेगा ना, आप स्ट्रेस फ्री कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके दिमाग में हमेशा ये चलता रहेगा ना कि यार मेरे पास अपनी सैलरी निकालने के पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, तो आप नहीं कुछ सक्सेसफुली अचीव कर पाओगे। इसलिए कोई भी चीज करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, नंबर वन, आपका एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपकी सेविंग्स, कि इन केस आपके पास कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये मैं पर्सनल की बात कर रहा हूँ, कंपनी की नहीं। अगर आपके पास कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है तो मेरे पास 6 से 8 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिससे मैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर सकूं, रेंट, फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब, और साथ ही साथ में कुछ नए करियर प्रोस्पेक्ट्स देखता रहूं। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, द मोमेंट आपकी पर्सनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सॉर्टेड है, फिर आप बिजनेस में फुल ऑन अपना दिमाग लगा सकते हो। बिकॉज उससे क्या होता है, आपका एक बहुत बड़ा बर्डन और आपका एक बहुत बड़ा बोझ खत्म हो जाता है। ठीक है, मेरी सैलरी का तो जुगाड़ हो गया, मेरे पास तो फंड्स हैं अभी अपने 6 महीने के, अब देखता हूँ बिजनेस में कैसे करना है। तो उस टाइम मैंने वही किया। 2017 में मेरे को एक मेंटर मिले काफी अच्छे, जो मेरे एक इन्वेस्टर ही थे। उन्होंने मुझे ये एडवाइस करी कि तुम एक काम करो, तुम किसी एक कंपनी में भी जॉब ले लो, और जॉब के साथ साथ तुम इस कंपनी को वापस से बिल्ड करो। तो उससे फायदा ये होगा कि तुम्हारी पर्सनल सैलरी तो सॉर्ट हो जाएगी क्योंकि तुमको कहीं जॉब मिल गई है, और तुम साथ के साथ इस बिजनेस को फिर बड़ा कर सकते हो। सो दैट इज व्हेन मैंने एक हेल्थ केयर कंपनी थी, मेरे ही कुछ फ्रेंड्स थे, मतलब फ्रेंड्स तो नहीं, कुछ नोन लोग थे जिन्होंने एक हेल्थ टेक कंपनी शुरू करी थी, ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी की। और वो मुझे काफी टाइम से कह रहे थे कि तुम्हारे नजर में कोई ऑन्टरप्रेन्योरियल कैंडिडेट हो या कोई अच्छा कैंडिडेट हो जो हमारे राजस्थान बिजनेस को हेड कर सके, तो तुम मेरे को रीच आउट करना। तो मैंने खुद ही रीच आउट कर लिया। अब इसमें कैसी शर्म, हमको पैसे चाहिए, हमको सैलरी चाहिए, हमको अच्छा पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको ज्वाइन करूंगा। बट मैंने उनको ये चीज पहले से क्लियर कर दी कि मेरा एक स्टार्टअप है जो अभी बंद हो रखा है, लेकिन मुझे उसको दोबारा खड़ा करना है। उसके लिए मैं आपके वर्किंग आवर्स में कभी काम नहीं करूंगा, बट आपके वर्किंग आवर्स के बाहर भी मैं काम नहीं करूंगा, मैं अपना काम करूंगा था। वो लोग काफी अकोमोडेटिव थे, काफी मेरे से, मतलब मेरे को जानते थे, तो मेरी रिस्पेक्ट भी करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, 9 to 7 PM आप हमारा काम करो, उसके अलावा आपको जो करना है हमें उससे कोई इशू नहीं है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट इज हाउ 2017 में मेरी जो कंपनी है ब्लू बॉक्स मीडिया, उसका एक तरीके से री इनकारनेशन हुआ। री इनकारनेशन का मतलब समझते, पुनर्जन्म कह सकते हैं उसको, कि मैंने वापस से सारा काम स्टार्ट किया, वापस से उस कंपनी को बनाना शुरू किया, और 2017 से लेकर आज तक वो कंपनी को मैं उसमें सोल फाउंडर हूँ। ठीक है, टुडे आई एम हैप्पी टू से कि वो कंपनी बहुत जल्दी एक 1 करोड़ रेवेन्यू कंपनी बनने वाली है, 1 करोड़ ईयरली रेवेन्यू कंपनी वो बनने वाली है। ऑल बिकॉज मेरे को काफी सारे मेंटर्स मिले, मैंने कई लोगों को रीच आउट किया, और मैंने डबल डबल काम किया। दिन में शायद 4-5 घंटे, आज भी मैं 4-5 घंटे ही सोता हूँ, कम सोया, और आज ही उसका रिजल्ट है थैंकफुली
कि आज वो कंपनी बहुत जल्दी 1 करोड़ एनुअल रेवेन्यू टच करने वाली है, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज ये जब कंपनी हमने शुरू करी थी, हम 2 पार्टनर से, तब भी हम 40-45 लाख से ऊपर कभी नहीं जा पाए थे एक साल के रेवेन्यू में। आज वो कंपनी 1 करोड़ रेवेन्यू टच करने वाली है। उसमें हमने कई नए वर्टिकल्स लॉन्च कर दिए हैं। अब डिजिटल की जगह हम प्रिंट मीडिया कंपनी भी बन गए हैं। हमारी खुद की मैगजीन आती हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसको लोग पढ़ते हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, एंड नाउ इट हैज बिकम अ प्रॉपर मीडिया कंपनी। और आज मुझे उस कंपनी में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं शायद अपनी जॉब छोड़ के उस कंपनी में जाऊं तो भी मैं इतना पैसा वहां से ले सकता हूं कि मुझे शायद वहां कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो ये जो पूरी जर्नी मैंने आपको बताई, और साथ ही साथ जैसा आप लोगों को राघवेंद्र जी ने बताया, आई एम ऑल्सो द सीईओ ऑफ अटल इंक्यूबेशन सेंटर कैटलिस्ट। ये जीआईटी में ही सेंटर है जो आईएफएमआर यूनिवर्सिटी चेन्नई ने खोला है, जहां पर भी हेल्प स्टार्टअप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर जर्नी, और वहां मैं अपनी काफी पर्सनल लर्निंग्स शेयर करता हूँ, राइट। दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। और इस पूरी जर्नी में जैसा मैंने आपको बताया, हमारी सबसे बड़ी लर्निंग, मेरी तीन या 4 लर्निंग्स मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, आप एंटरप्रेन्योरशिप आप पे कभी भी फोर्स नहीं करी जा सकती। आपको अगर कभी भी कोई आके बोले ना कि यार स्टार्टअप करना है, तो आप स्टार्टअप मत करो। एंटरप्रेन्योरशिप एक करियर चॉइस है, ठीक है। जैसे आप एक आईटी कंपनी में जॉब कर सकते हो, जैसे आप डॉक्टर बन के किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, जैसे आप सीए बन के किसी फर्म में पार्टनर बन सकते हो, आप आर्किटेक्ट बन के कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, वैसे ही स्टार्टअप है। तो पहली बात तो ये कि स्टार्टअप करना और जॉब करना ये सारी करियर चॉइस है, ठीक है। आपको प्रेशर नहीं लेना है कि मेरा दोस्त स्टार्टअप करना है तो मुझे भी स्टार्टअप करना है। अरे भाई, जरूरी नहीं हर जना स्टार्टअप करे, ठीक है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हर जने को स्टार्टअप करना है। आईटी की जॉब भी उतनी ही अच्छी है जितनी स्टार्टअप की नौकरी स्टार्टअप करना है। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों की अपनी पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, जो आपको देखने हैं और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। सबसे बड़ी पहली लर्निंग ये है, ठीक है। मैंने स्टार्टअप इसलिए किया बिकॉज मुझे आईटी कंपनी की जॉब नहीं करनी थी, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत रेप्यूटेड थी, हमारे यहाँ कंपनीज बहुत अच्छी अच्छी आ रही थी, गूगल, अमेजॉन, सारी तरह की कंपनीज जिनके बारे में आपको पता है वो सब आ रही थी हमारे यहाँ। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, व्हाट्सएप भी हमारे यहाँ आई थी उस टाइम प्लेसमेंट के लिए, और शायद उनमें से कई में मैं एलिजिबल भी था और मैं सिलेक्ट भी हो जाता। बट मेरा प्लेन एंड सिंपल था कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे अपना खुद का कुछ करना है, बिकॉज मैं उस तरह की लाइन में नहीं घुसना चाहता था। मेरी वो करियर चॉइस थी। आपने देखा उसमें कितने अप्स एंड डाउन आए। एक टाइम था जब मैं सिर्फ 15,000 रुपए महीने सैलरी निकाल रहा था अपने स्टार्टअप से, बिकॉज हमारे इन्वेस्टर्स ने उससे ज्यादा पैसा हमें अलाउ नहीं किया था अपनी कंपनी से निकालना। और उसी टाइम पे मेरे फ्रेंड्स जो आईटी की जॉब कर रहे थे, वो 30-35 हजार, 40,000, 50,000, कुछ लोग 70-80 हजार रुपए पर मंथ सैलरी ले रहे थे, राइट। तो आप देखो कितना नेगेटिव और पॉजिटिव है। आज वो लोग शायद मुझसे इस मामले में पीछे हो, बट पहले मैं पीछे था। तो कभी भी स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को आप कोई कंपल्शन मत समझो, ठीक है। इट इज अ करियर चॉइस। आप जॉब कर सकते हो, आप स्टार्टअप कर सकते हो, दैट इज अप कंप्लीटली अप टू यू, बट कोई कंपल्शन नहीं है कि स्टार्टअप करना। दैट इज नंबर 1 लर्निंग। नंबर 2, आप बहुत केयरफुली और बहुत प्रॉपर तरीके से अपना मेंटर चूज करो, ठीक है। हर जने की लाइफ में एक मेंटर होना जरूरी है। मेंटर का मतलब है, इट इज नॉट कि मेंटर कोई सक्सेसफुल, अभी आप ऐसा नहीं कि आप मुझे ही मेंटर बनाओ या किसी एंटरप्रेन्योर को मेंटर बनाओ। आपके पेरेंट्स भी आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके खुद के स्टूडेंट्स भी आपके मेंटर हो सकते हैं। बट मेंटर बहुत केयरफुली चूज करना, ऐसा मेंटर जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस दे, जब गलत है तो आपको गलत बताए, जब सही है तो आपको सही बताए, ठीक है। तो एक अच्छा मेंटर लाइफ में होना जरूरी है। मुझे वो मेंटर थोड़े लेट मिले, बट जब से मुझे वो मेंटर मिले और जब से मैंने उनके साथ अपनी सलाह मशवरा करना शुरू किया, तब से मेरे प्रोफेशनल लाइफ में काफी चेंज आया है, ठीक है। तो सेकंड लर्निंग ये है कि मेंटर प्रॉपरली चूज करें। अच्छा, एक चीज और, लिंक्डइन पे जब आप जाओगे, आप में से काफी लोग मेरे हिसाब से लिंक्डइन पे होंगे, और जब आप लिंक्डइन पे जाओगे तो लिंक्डइन पे जाने में कई लोग अपनी प्रोफाइल में लिख देते हैं मेंटर, मेंटर फॉर स्टार्टअप्स, मेंटर फॉर स्टार्टअप्स। इस छलावे में मत आना, ठीक है। ये सब एक डिल्यूजन है। जो भी लोग लिंक्डइन पे अपने आप को मेंटर बोल रहे हैं, आप समझ जाओ उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको क्या है। कोई भी आइडियल मेंटर होगा, आप चाहोगे ऐसा मेंटर जो ऑलरेडी लाइफ में कुछ कर रहा हो, नंबर 1, और उस करे हुए चीज से आपको सीखते। अभी आज मेरे पास कोई अगर स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए आता है, तो मैं जो मेरी पर्सनल लर्निंग्स है, मेरा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है,
मेरी जॉब है, इन चीजों से जो मुझे लर्निंग मिल रही है मैं वो उसको बताता हूँ। ठीक है, मैं अभी ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ जो कहीं बुक्स में लिखा है या किसी ने अपनी टेडेक्स टॉक में बोला है, या ऐसा कुछ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है वो मैंने आपसे शेयर किए। तो मेंटर्स हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसके पास खुद का कुछ हो, जिससे वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर कई जगह लोग अपने आप को मेंटर बताते हैं, यूट्यूब वीडियोस करते हैं और 50 तरह का ज्ञान देते हैं। आपको पहला क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि आपने क्या किया है लाइफ में जिससे आप ये एक्सपीरियंसेस ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, और ये एक्सपीरियंसेस जो आप ड्रॉ कर रहे हो, इनसे आप हमें कुछ बता रहे हो क्या, या आप हमें कहीं बुक से पढ़ के, कि आपने पीटर थील की कोई बुक पढ़ ली, या आपने सचिन सचिन बंसल की कोई बुक पढ़ ली, या आपने बिनी बंसल की कोई बुक पढ़ ली, या आपने जेफ बिजोस की कोई बुक पढ़ ली और वो मुझे बता रहे हो, वो मुझे मेंटरशिप नहीं चाहिए। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आप कुछ अगर बता रहे हैं तो आप हमारे लिए मेंटर हैं, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, नंबर 3 विच आई वांट टू टेल यू इज कि नंबर 3 रहेगा कि किसी भी मेंटर या किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से आप जब बात करते हैं तो अप्स एंड डाउन्स दोनों पूछें। कई लोग, और आजकल मीडिया में क्या हो रहा है, इसको इतने $1 बिलियन की फंडिंग मिल गई, इसको 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन मिल गई, इसको 500 करोड़ की फंडिंग मिल गई। ये सब मीडिया का ग्लिट्स एंड ग्लैमर है। जैसे बॉलीवुड में होता है ना, बॉलीवुड में क्या होता है, आपको एक्टर एक्ट्रेसेस मूवीज पे थिएटर में बड़े सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी रियल लाइफ फोटोज निकाल के देखोगे तो कुछ और ही स्टोरी निकलती है, राइट? ये होता है बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस में, आपने खुद देखा होगा। सेम चीज स्टार्टअप्स के साथ है। ठीक है, मीडिया में जो खबर आती है उससे दिमाग में अपने डाल के कुछ शुरू मत करो, पूरी स्टोरी समझने की कोशिश करो कि उस एंटरप्रेन्योर के अप्स एंड डाउन्स क्या रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप कुछ करो। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, पेटीएम करके एक कंपनी है, आप सबने काफी लोग यूज भी करते होंगे पेटीएम। ठीक है, अच्छा, पेटीएम के बारे में पिछले 7-8 साल में न्यूज में बहुत जबरदस्त चीजें आई हैं। उनके फाउंडर ने ये कर दिया, इतने पैसे इन्वेस्टर से मिल गए, ये मिल गए, वो मिल गए। लेकिन पेटीएम का जो पहला टेस्ट आया वो तब आया जब उन्होंने पिछले साल स्टॉक मार्केट में अपनी लिस्टिंग करी। मैं उसको टेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, किसी भी बिजनेस के लिए जब वो पब्लिक के सामने अपने आप को लिस्ट करता है, वो सबसे बड़ा टेस्ट है। पब्लिक आपको एक्सेप्ट करती है, इसका मतलब आपके बिजनेस में दम है। और देखो, पब्लिक को वही बिजनेस दिखता है जिसमें पैसा हो, जिसमें धंधा हो। आप कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी बना रहे हो, कितना ही बड़ा ऐप बना रहे हो, आप कितने ही मिलियंस आपके पास यूजर है, अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं है ना, तो आपको पब्लिक कुछ नहीं मानती है। और ये यूएस में भी यही है, इंडिया में भी है, ऐसा नहीं कि इंडिया में है, सब जगह स्टॉक मार्केट्स में यही होता है। ठीक है, तो पेटीएम का पहला बड़ा टेस्ट आया कि ठीक है, आपने बातें तो बड़ी बड़ी बोल दी, मेरे पास 500 मिलियन यूजर्स हैं, पेटीएम वॉलेट इंडिया का नंबर 1 वॉलेट है, बिल्कुल है, सारी चीजें आपकी सही है, बट पैसा है क्या आपके पास? आप रेवेन्यू बना रहे हो क्या? आपने इतनी फंडिंग तो रेस कर ली, बट क्या उससे आपको रेवेन्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये चीज हमने पब्लिक मार्केट में जब पेटीएम ने लास्ट टाइम लिस्ट करी तो ये टेस्ट हुआ, और उस टेस्ट में अनफॉर्चुनेटली पेटीएम पूरी तरीके से फेल हो गया। पेटीएम की स्टॉक प्राइस थी 2,150 रुपए, आज वो शायद 1,000-1,100 रुपए की स्टॉक प्राइस पे चल रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहली बार जब पेटीएम की बुक्स पब्लिक के सामने खुली, उनके रेवेन्यूज पब्लिक के सामने खुले, तो उन पब्लिक को रियलाइज हुआ कि यार पैसा तो बन ही नहीं रहा है। अभी आप और मैं वॉलेट में अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, आप मुझे 100 रुपए भेजते हो तो मुझे 100 रुपए मिल जाते हैं, तो इसमें पेटीएम ने कैसा पैसा कमाया? लोगों ने बेसिक क्वेश्चन पूछा कि भाई आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन में कमा कैसे रहे हो, क्योंकि हमें तो 100 के 100 मिल रहे हैं, तो आप किससे पैसा चार्ज कर रहे हो? और ये सारी चीजें उनकी पब्लिक मार्केट में सामने आ गई, जिसका रीजन आज ये है कि वो पेटीएम जो $20 बिलियन की वैल्यूएशन पे था, जिसको मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया, आज वो 10 से 11 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पे 1 महीने में आ गया है। ठीक है, सो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इससे लेसन ये है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर से इंस्पायर तभी होना है जब आपको उनके अप्स एंड डाउन्स दोनों पता हो। अगर आपको उनके डाउन्स नहीं पता है तो पता करो कि क्या गलत हुआ है, क्या गलतियां करी हैं, और अप्स नहीं पता है तो वो भी पता करो कि क्या अच्छा हुआ और क्या गलती से सीख के क्या किया है। ठीक है, नंबर चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस को कभी जनरलाइज मत करो। ठीक है, मार्क जकरबर्ग ने अपना कॉलेज छोड़ के फेसबुक बना लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन वो 1 करोड़ बच्चों में से एक बच्चा है जो ऐसा कर पाया है। ठीक है, उसको एग्जाम्पल लेके ऐसा ना हो कि कल को आप कॉलेज छोड़ के कोई सोशल नेटवर्क बनाना शुरू कर दिए और बाद में पता चला भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। इसका मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि लाइफ में हमेशा एक सॉलिड बैकअप होना चाहिए। ठीक है,
मेरा वो बैकअप मुझे 2017 में मिला जब मैंने एक साइड में जॉब करना शुरू किया। आपका बैकअप आपकी एजुकेशन है, ठीक है। मैं कभी भी ये किसी स्टूडेंट को नहीं बोलता हूँ कि जा आपने, अगर आप अभी अपने करंट कॉलेज में भी आपने कोई बिजनेस बना लिया है या आपने कोई अच्छी स्टार्टअप खोली है, वेरी गुड, बट अपना कॉलेज मत छोड़ो, ठीक है। एक बैकअप लाइफ में होना बहुत जरूरी है। और ये मार्क जकरबर्ग या ये बिल गेट्स या सर्गरी ब्रेन एंड लारी पेज, गूगल के फाउंडर्स, ये सब एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना 1 in a 1 million या 1 in a billion वाले एक्सेप्शंस हैं ये, बट हम तो उस बिलियन का पार्ट है ना। हम थोड़ी एक्सेप्शन, जरूरी नहीं है कि हम भी एक्सेप्शन हो सकता है आप भी एक्सेप्शन बन जाओ किसी दिन, बट बैकअप होना जरूरी है, ठीक है। तो लाइफ में हमेशा कोई ना कोई बैकअप जरूर रखो। या तो वो आपकी अच्छी एजुकेशन हो सकती है, या आपके पास कोई जॉब है वो हो सकती है, या आपके पेरेंट्स, अगर फॉर्चुनेटली आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है और आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि बेटा तू जो करना है कर, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, तो वो आपका बैकअप हो सकता है। बट लाइफ में बैकअप होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल जो मैं आपको बोलूंगा, जो मैंने सबसे लास्ट में पहले भी बोला था, entrepreneurship is only a career choice. Just the way you do a job, you do entrepreneurship. ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक entrepreneur हूं तो मैं किसी जॉब वाले से बहुत अच्छा हूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जॉब वालों की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करो जितनी आप एक entrepreneur की करते हो, बिकॉज हर जना अपनी लाइफ में मेहनत कर रहा है, हर जने का अपनी लाइफ में कोई ना कोई पर्सपेक्टिव है, हर जने की अपनी लाइफ की कोई ना कोई स्टोरी है। जरूरी नहीं है हर जना entrepreneur बने और जरूरी नहीं है हर जना जॉब करे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपने कोई स्टार्टअप शुरू कर दिया तो आप किसी जॉब करने वाले कलीग से या अपने किसी जॉब करने वाले दोस्त से ऊपर आ गए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप अपना करियर कर रहे हो, वो अपना करियर कर रहे हैं, दोनों जो जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे आप हर जना अपने करियर में सक्सेसफुल हो, बट प्लीज नेवर कंसिडर कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूं तो मैं बहुत ऊंचा हूं और जो जॉब कर रहे हैं वो बहुत नीचे, क्योंकि आजकल ये मेंटालिटी आ गई है मार्केट में। मीडिया ने स्टार्टअप्स की न्यूज डाल डाल के, और आपका जो आज इंस्टाग्राम फीड है उसमें कई लोग अपने आप को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, उन लोगों ने ऐसा बता दिया है कि अरे यार 9 से 6 की नौकरी कौन करे, ये नौकरी बेकार होती है, हमें तो कुछ अपना करना है। सबके अपने पर्सपेक्टिव है, किसी के लिए बेकार होगी, किसी के लिए नहीं है, बट इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो जॉब कर रहा है उनको आप अपने से छोटा या अपने से डिमीन करो। दिस इज नेवर द राइट ऑप्शन। स्टार्टअप इज ऑल्सो करियर चॉइस, जॉब इज ऑल्सो करियर चॉइस, बोथ आर इक्वली गुड। दोनों के अपने पॉजिटिव्स हैं, दोनों के अपने नेगेटिव्स हैं। स्टार्टअप का सबसे बड़ा नेगेटिव ये है, एटलीस्ट इंडिया में 100 में से 2 स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये ध्यान रख के ही कोई स्टार्टअप करना। आपके पास आइडिया है आप करो, आपके पास बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है आप करो, आप उस पर लग जाओ, पूरे लगन से लगो, लेकिन अपने सामने जॉब वालों को बुरा मत समझो। जॉब वाले अपनी चीज कर रहे हैं, आप अपनी चीज कर रहे हो। ये मेरी 4-5 लर्निंग्स थी। राघवेंद्र जी, आई थिंक मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा स्टूडेंट्स से, अगर उनके कोई क्वेश्चंस होंगे तो, Yes, sir. ताकि ये थोड़ा इंटरेक्टिव रहे। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी अगर क्वेश्चंस है तो आप अनम्यूट अगर इसमें है या कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। Students, please write your question in chat box, or if you can unmute yourself, then please ask the question. बिना किसी झिझक के पूछें, कोई भी क्वेश्चन है आपको तो यू कैन आस्क। You can write questions in the chat box also. क्वेश्चन आया है मेरे पास Q&A सेक्शन में, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ स्टार्टअप, इज इट बेटर देन अ कॉलेज प्लेसमेंट? Yes, sir. ये क्वेश्चन आया है मेरे पास, तो आई विल रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो, मैंने जैसा आपको भी लास्ट बात बोली, नथिंग इज बेटर देन एनीथिंग, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू मेक वेरी क्लियर इन योर माइंड इज बोथ हैव देयर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, एंड बोथ हैव देयर, मतलब दोनों इक्वल लेवल पे हैं अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। डूइंग अ स्टार्टअप एंड गोइंग फॉर अ कॉलेज प्लेसमेंट, बोथ हैव देयर ओन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अब आपने पूछा व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ स्टार्टअप, वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टअप के क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्टअप की प्रोज की बात कर लेते हैं।
नंबर वन प्रो है दैट यू गेट टू डू व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। कई जो अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका स्टार्टअप करने का मोटिव सबसे बड़ा ये था कि हम वो करना चाहते हैं जिसमें हमारा मन लगता है। देखो, जॉब में कई बार आपको सिचुएशन एनकाउंटर करनी पड़ती है कि आपको ऐसा कोई काम दिया जाए जो शायद आपका मन नहीं है बट आपको करना पड़ेगा, बिकॉज वो जॉब है, एक कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको वो करना है। स्टार्टअप के केस में एक थोड़ी सी फ्रीडम आपके पास आ जाती है, एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में। बाद में तो अगर आप इन्वेस्टर्स ले आते हो और अलग अलग तरह के लोग आपकी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको कंसल्ट करना पड़ता है, बट एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, मैं दोनों चीज कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि बिजनेस में यू डू व्हाट यू वांट टू डू। आपके मन में जो है वो आप कर सकते हो, इसलिए वो बिजनेस का एक सबसे बड़ा प्रो है। सेकंड, मेरे हिसाब से बिजनेस का प्रो ये है कि जो वेल्थ क्रिएशन होता है, ठीक है। अब वेल्थ और सैलरी में अंतर मैं बताता हूँ आपको। वेल्थ क्रिएशन बिजनेस में ज्यादा इजिली पॉसिबल है एज कंपेयर टू कॉलेज प्लेसमेंट या कोई जॉब, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये है कि अचानक से सडन बर्स्ट ऑफ मनी जो लोगों के पास आता है वो स्टार्टअप में आता है। स्टार्टअप में क्या होता है, शुरू के 3-4 साल 5 साल तो आप काफी स्ट्रगल करोगे। स्ट्रगल इन द सेंस बेसिक सैलरी ले लोगे, लेकिन बहुत ज्यादा वेल्थ आपके पास नहीं बनेगी, मतलब एसेट्स नहीं होंगे आपके पास। आपके बैंक बैलेंस शायद कम रहेगा, आपके पास शायद उतना बड़ा घर गाड़ी ये सब चीजें ना हो पाए, ठीक है। लेकिन स्टार्टअप में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाता है या अगर आप कोई बड़ा पैसा रेस मतलब आप एग्जिट कर लेते हैं, एक्वायर हो जाते हैं, तो सडन बर्स्ट ऑफ वेल्थ आता है। वो वेल्थ क्रिएशन जॉब में पॉसिबल नहीं है। जॉब में ये रहेगा कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली हर महीने की सैलरी आपको पता है कितनी आनी है, तो वो आप उसमें कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, अपना सेविंग्स में अकाउंट्स में डाल सकते हैं, और वो अकाउंट्स में डालते डालते आप कुछ एक वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन जरूर है कि 3-4 साल में जॉब क्रिएशन से जो वेल्थ है वो थोड़ी एक स्टैग्नेंट लेवल पे रहेगी, लेकिन अचानक से स्टार्टअप में जो वेल्थ आती है वो बहुत ज्यादा आती है। बट द कंडीशन इज, विच इज अ कॉन ऑफ द स्टार्टअप, कि आपको वो स्टार्टअप सक्सेसफुल करना पड़ेगा, वो बिजनेस सक्सेसफुल करना पड़ेगा, तभी वो वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कुछ सबसे बड़े पॉजिटिव्स हैं। मेरे पास काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं एक एक करके आंसर करूंगा। तो ये सबसे बड़े पॉजिटिव्स हैं एक स्टार्टअप के। नंबर वन, यू गेट टू डू व्हाट यू वांट टू डू। सेकंड इज वेल्थ क्रिएशन कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू अ जॉब, बट द कंडीशन बीइंग आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होना चाहिए, वो सबसे बड़ी कंडीशन है, ठीक है। एंड थर्ड विच आई फील इज कि हम सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप 4 लोगों को इंटर्नशिप भी दे पा रहे हैं, पेड इंटर्नशिप, तो शायद वो 2-4 हजार 5 हजार रुपए जो आप उसको मंथली दे रहे हो, वो उसकी लाइफ में कोई ना कोई इम्पैक्ट कर रहा होगा। तो वो जो इम्पैक्ट क्रिएशन की फीलिंग है ना, ये कोई मटेरियल चीज नहीं है, वो जो इम्पैक्ट क्रिएशन की फीलिंग है वो बहुत जबरदस्त होती है, और वो आपको एक स्टार्टअप में ही आ सकती है या एक बिजनेस में आ सकती है। अभी आज अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालता हूँ, उसमें मेरा पैसा लगेगा, शुरू में कमाई कम होगी, लेकिन मैं 15 मजदूरों को जॉब दूंगा। उस 15 मजदूरों को जो भी मैं पैसा दे रहा हूँ, उससे उनका घर चल रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके दिवाली होली मन पा रही है। वो जो इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर पाता हूँ ना, उसमें बड़ा मजा आता है। वो आप जॉब में अनफॉर्चुनेटली इतना डायरेक्ट लेवल पे नहीं कर सकते। हो सकता है आप जॉब में किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वो कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बना रही हो, उस सॉफ्टवेयर से किसी का भला हो रहा हो, बट डायरेक्टली तो आप किसी को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ एक जॉब कर रहे हो जहां आपको पैसा मिल रहा है, आपकी अपनी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। बट एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता हूँ, ठीक है। अब आते हैं कॉन्स पे। सबसे बड़ा कॉन स्टार्टअप का अनसर्टेनिटी, ठीक है। आपको पता नहीं कब क्या हो जाए, आपको पता नहीं अगले महीने की रेवेन्यू कहाँ से आएगा, आपको पता नहीं अगले महीने का पैसा कहाँ से आएगा। जॉब में आपको पता है मेरे को अगले महीने इतनी, अगर आपको कोई निकाल भी देता है तो 2 महीने का नोटिस पीरियड है। आपको पता है मेरे पास 2 महीने हैं जब मुझे सैलरी मिलती रहेगी, इतनी सैलरी आएगी, उसको मैं पहले से प्लान कर सकता हूँ। इतना पैसा मुझे अपने घर की ईएमआई में देना है, इतना गाड़ी की ईएमआई में देना है, इतना सेविंग्स में देना है, इतना म्यूचुअल फंड में देना है, मेरी पूरी प्लानिंग डन है। और उसके बाद शायद मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कैश पड़ा होगा जो मैं अपना घूमने फिरने में एंजॉय कर सकता हूँ। तो स्टार्टअप का सबसे बड़ा कौन है अनसर्टेनिटी, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस, ठीक है। सेकंड सबसे बड़ा कौन है फेलियर्स। स्टार्टअप में फेलियर रेट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 10, मैंने जैसे आपको बताया, 100 में से शायद 2 ही लोगों का स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा। और सक्सेसफुल का मतलब है कि वो कोई प्रॉफिट कमा रहा हो, खुद की भी सैलरी अच्छी निकाल पा रहा हो और प्रॉफिट भी कमा रहा हो, ठीक है। तो फेलियर रेट स्टार्टअप में बहुत हाई है, ये आपको मानना पड़ेगा। जॉब में क्या होता है, अभी जैसे आप लोगों के कॉलेज में मास प्लेसमेंट्स होते होंगे, तो आपको पता है कई लोगों का प्लेसमेंट हो जाना है और कुछ ना कुछ करके कैसी ना कैसी जॉब तो मिल जानी है। तो वो जो सर्टेनिटी होती है, एक श्योरिटी होती है,
वो जॉब वो आपको स्टार्टअप में नहीं मिल पाती है, ठीक है। नंबर 3 ये है कि जैसे जैसे आपका स्टार्टअप ग्रो करता जाता है, आपको अपने अंदर ह्यूमिलिटी की फीलिंग लानी पड़ती है। वो बहुत डिफिकल्ट फीलिंग है। ह्यूमिलिटी का मतलब है आपको कई लोगों की एडवाइस सुननी पड़ेगी। आपको हो सकता है कल को कोई इन्वेस्टर आए, वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेगा, हो सकता है वो आपको कुछ बोले तो आपको समझना पड़ेगा। तो वो जो ह्यूमिलिटी की फीलिंग है, वो लाना बहुत जरूरी रहता है स्टार्टअप में। जॉब में आपको ठीक है, मैं एक क्यूबिकल में बैठ के जॉब कर रहा हूँ, मेरे को मेरे मैनेजर ने कुछ काम दिया, वो मैंने कर दिया, काम खत्म, ठीक है। लेकिन स्टार्टअप जब आप कर रहे हो, आपने फीलिंग तो ये रखी कि यार मेरा जो मन है वो मैं करूंगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको दिख रहा है अब और भी लोग मुझे एडवाइस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसा डाला है। तो वो एक ह्यूमिलिटी की फीलिंग है, वो जो ईगो क्लैश होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। तो वो एक स्टार्टअप का कौन है, ठीक है। आई होप मैंने आपको एक प्रभजोत ने एक क्वेश्चन पूछा है, आई होप प्रभजोत आपका क्वेश्चन आंसर हुआ हो। आप चैट में यस लिख दो और अगर आपको कोई फॉलोअप है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अ टैग ऑफ कॉलेज रियली मैटर्स इन करियर बिल्डिंग। ये ना दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मितेश। ये थोड़ा सा ना इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो आपने मुझसे टैग ऑफ कॉलेज पूछा है ना, देखो कभी कभार जनरली देखा जाए तो ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है कि आप एक आईआईटी से हो या आप किसी रेप्यूटेड प्राइवेट, मतलब बेसिकली वो जो टॉप इंडिया के 20-30 कॉलेजेस हैं उनमें से आप हो, या आप एक नॉन 20-30 कॉलेज में हो। इसका मैटर वहां ज्यादा पड़ता है जहां कंपनीज मास लेवल पे रिक्रूटमेंट कर रही हैं और उनको आपका स्किल्स असेस करने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो देखो ये एक इस क्वेश्चन का कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। इसका आंसर ऐसा है कि अगर आप किसी मास रिक्रूटमेंट कंपनी में जाते हो तो वो तो देखो उनके पास, उनके एचआर के पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक जने की स्किल असेस करें, ठीक है। उनको दिखेगा अच्छा ये बंदा आईआईटी का है तो ठीक ही होगा, तो चलो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। और ये बंदा शायद नॉन आईआईटी से या किसी नॉन रेप्यूटेड कॉलेज से है तो हम इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे मेरे केस में मैंने इंजीनियरिंग एसआरएम यूनिवर्सिटी से करी, मेरा एमबीए नार्सी मोहनजी इंस्टीट्यूट से हुआ, तो जो दोनों थोड़े ठीक ठाक कॉलेज है, इनका नाम अच्छा है, तो अगर जॉब के लिए कहीं अप्लाई करूं मैं मास रिक्रूटमेंट में तो शायद मुझे उतनी दिक्कत नहीं आए। लेकिन अगर आप किसी मास रिक्रूटमेंट में जा रहे हो तो कभी कभार वहां टैग का फर्क पड़ता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी स्टार्टअप में जॉब लेने जा रहे हो, वो लोग स्किल पे बहुत फोकस करते हैं, कॉलेज टैग पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपके लिए मतलब इस सवाल का जवाब यही है कि अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी या एक न्यू एज कंपनी में जा रहे हो तो शायद टैग उतना मैटर नहीं करे, स्किल्स मैटर करती हैं। लेकिन अगर आप मास रिक्रूटमेंट में या किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हो जो जिनके पास टाइम नहीं है शायद आपकी प्रोफाइल असेस करने का, तो वो शायद आपके कॉलेज टैग को देख के आपको शॉर्टलिस्ट करें, ठीक है। आई होप मितेश आपका कॉलेज आंसर हो, आपको क्वेश्चन आंसर हुआ। नेक्स्ट कनिष्क का क्वेश्चन है स्टार्टअप मार्केट नाउ एंड बिफोर 20 years has changed so much, like now the ideas for new innovation are limited, so competition in startups is high too now. What's your take on this point? Right, Kanishk. So definitely देखो, due to social media and due to everybody being connected and YouTube and all, कंपटीशन तो बढ़ गया है। आज से 20 साल पहले या आज से 30 साल पहले शायद उतना कंपटीशन स्टार्टअप डोमेन में नहीं था, क्योंकि उस टाइम ऑब्वियसली इस तरह के नहीं थे। बट एट द सेम टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि हर एरा की, हर टाइम की अपनी अलग चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। अब आज हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं बट चैलेंजेस बहुत हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से कई लोग सोचते हो कि यार अब ई कॉमर्स में बचा क्या है करने को, इतने सारे तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, सबने इतना सारा ई कॉमर्स बना लिया, अब इसमें क्या बचा है। आपको ये जान के शौक होगा कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन में से अभी 5% भी ई कॉमर्स यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप यूज कर रहे होगे, ठीक है, लेकिन आपके घर में जो काम वाली बाई आती है क्या वो यूज कर रही है? या आपके यहाँ आपके घर पे अगर बाई चांस ड्राइवर है तो क्या वो ड्राइवर यूज कर रहा है? गारंटी नहीं है। तो ऐसा हमको क्या लगता है ना, ये मैंने स्टूडेंट्स में जनरली देखा है कि जब स्टूडेंट स्टार्टअप करने जाते हैं तो वही बेसिक आइडियाज को बार बार करते हैं, वही रेस्टोरेंट डिलीवरी, वही ई कॉमर्स, वही हम नोट्स बना के देंगे बच्चों को, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। उससे अलग हटना पड़ेगा। वो चीज अब आप नहीं कर सकते। आपको एग्जिस्टिंग जो सॉल्यूशंस आए हैं उनमें और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनको रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे मैंने ई कॉमर्स आपको बताया, क्या आप एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हो जो गांव के लोग यूज कर पाए? अगर हाँ, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की है कि आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से बड़ा ई कॉमर्स बना सकते हो। बट वो अपॉर्चुनिटी को आपको टैप करना है, उसमें आपको इनोवेट करना है।
राइट? तो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन पहले नहीं था, पहले अपने अलग चैलेंजेस थे। अब चैलेंजेस इसलिए भी ज़्यादा हो गए क्योंकि अब लोगों के पास स्किल्स भी ज़्यादा आ गई हैं। लोगों के पास सोशल मीडिया का एक्सेस ज़्यादा आ गया है, लोगों के पास यूट्यूब, फेसबुक का एक्सेस बहुत आ गया है, इंस्टाग्राम का एक्सेस बहुत आ गया है, तो लोगों ने अपने-अपने रास्ते निकाल लिए हैं। तो ये बात सही है कि कॉलेज स्टूडेंट्स अब जो नॉर्मल आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, और मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स में इन्वेस्ट भी करता हूँ। तो हमने भी ये देखा है जनरली कि वही बेसिक आइडियाज़ अब बार-बार लेके स्टूडेंट्स आ रहे हैं। आप ही की कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी, वो चेंज करना पड़ेगा यार। मतलब अब आप वापस से ई-कॉमर्स कंपनी, फूड डिलीवरी कंपनी, फैशन कंपनी ये नहीं बना सकते। ये सब हो गया अब। अब आपको करना है तो कुछ नीश करो, कुछ अलग करो, कुछ डिफरेंट करो। रोबोटिक्स में भी अब कई लोग, कई स्टूडेंट्स लेके आते हैं, हमने ये रोबोट बना लिया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि 10 साल पहले ये रोबोट बन चुका है। ठीक है? तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपकी कोई यूनिकनेस हो, आपकी कोई यूएसपी हो। बट हैविंग सेड दैट, अभी बहुत चैलेंजेस हैं। हमारी कंट्री, इंडिया की सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारी कंट्री में इनफाइनाइट चैलेंजेस हैं। हर चीज में चैलेंज है। रोड ढंग से नहीं बन पाती, पानी ढंग से नहीं आ पाता, बिजली के बिल में दिक्कत आती है। ये सारे चैलेंजेस को टैकल किया जा सकता है टेक्नोलॉजी से। तो स्कोप तो जबरदस्त है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है। ठीक है? आई होप कनिष्क आपका ये क्वेश्चन आंसर हुआ हो। ये एक क्वेश्चन है अमन सैनी। Sir, you talked about Paytm right now, but sir, Paytm is a company just like that. They are currently accepting customers and they will earn revenue. Although it's IPO informed by the listing and still lagging behind, I believe to do well. Please correct. हाँ, हाँ अमन, सुसी, आगे क्या होता है वो तो पता नहीं। पेटीएम को चेंज तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज कंपनी बंद हो जाएगी। क्योंकि अब कोई प्राइवेट इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो कंपनी पब्लिक हो गई है। ठीक है? तो पेटीएम को चेंज तो करना पड़ेगा, एंड आई होप कि वो चेंज कर ले। बट प्रॉब्लम इज कि पेटीएम को 10-12 साल हो चुके हैं अब, और अभी तक रेवेन्यू का कोई स्कोप नहीं दिखा है। और जहां तक आपने बात करी क्रेड की, क्रेड भी उसी तरह की कंपनी है। एज ऑफ नाउ एटलीस्ट मुझे ऐसा नहीं लगता क्रेड का कोई फ्यूचर है, बिकॉज क्रेड को फाउंड एक ऐसे बंदे ने किया जिसके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, जिसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो उन्होंने फंडिंग रेज कर ली। बट आई डोंट फील क्रेड का कोई फ्यूचर है। और क्रेड जो कर रहा है वो बैंक्स ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है? क्रेड का बेसिक प्रेमाइस ये है कि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स आप पे करो और आपको कोई कैशबैक मिल जाएगा। बट वहां पर जो कैशबैक्स मिल रहे हैं और वहां पर जो कूपन्स मिल रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है सच। तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत ज्यादा फ्यूचर है। हाँ, ऑफ कोर्स अगर बिजनेस मॉडल में चेंजेस आते हैं, पेटीएम ने कोशिश करी है, जैसे पेटीएम ने भी पेमेंट्स बैंक शुरू किया है, पेटीएम ने स्मॉल बिजनेसेस को लोन देना शुरू किया है। उस तरह के बिजनेस मॉडल्स अगर लाते हैं तो शायद चेंजेस आए, डेफिनेटली। ऐसा फ्यूचर तो मुझे भी नहीं पता, बट जो अभी तक सिचुएशन है वो थोड़ी डिफिकल्ट है। उसके बेसिस पे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा होने वाला है इन दोनों ही कंपनीज का। और टाइम इज रनिंग आउट फॉर बोथ ऑफ देम, बिकॉज काफी टाइम हो गया है। आईपीओ, पेटीएम का तो आईपीओ आ चुका है, काफी टाइम हो गया है, अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी टाइम आएगा जब वो अपने पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट करेंगे, तो देखते हैं उसमें क्या आता है। बट बड़ा डिफिकल्ट टाइम है पेटीएम के लिए भी, और उनको बहुत जल्दी अपना मॉडल चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे नहीं और पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे। बहुत लॉसेज है अभी उनके, बहुत बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है? एक क्वेश्चन है यशवर्धन राजावत, कुछ बोलना चाह रहे हैं। राघवेंद्र जी, कैसे कर सकते हैं हम? आई थिंक हेलो राघवेंद्र जी। अच्छा, ओके। सपना का क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डेवलप योर आइडिया। मैंने जैसा आपको शुरू में बताया, मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर में अपने सीनियर्स को देखा था, एंड मुझे उस तरह का कुछ करना नहीं था। और मुझे ये था, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने आप को बोलूंगा कि मैंने काफी अर्ली एज से टेक्नोलॉजी और इनके बारे में पढ़ना और काफी शुरू कर दिया था। ठीक है? इंजीनियरिंग लेनी थी या नहीं लेनी थी ये क्लैरिटी नहीं थी, बट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना, जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हैं दुनिया के, बिल गेट्स, सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज, इनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। मार्क जकरबर्ग भी तब बहुत बड़ा नाम नहीं थे, बट उनके बारे में भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो तब तो मेरा इंस्पिरेशन यही थे कि यार कुछ ऐसा करना है जो शायद उस रन ऑफ द मिल में मैं ना जाऊं। और इसलिए मैंने ये कंपनी शुरू करी, एंड थैंकफुली अभी थोड़ा बढ़िया चल रही कंपनी, सो होपफुली आगे भी कुछ अच्छा ही होगा। बट दैट वाज माय इंस्पिरेशन। बट ये मैं आपको बता दूं सपना, कि किसी के फोर्स में आके मैंने ये नहीं किया।
जस्ट बिकॉज मेरे आसपास लोग स्टार्टअप करना चाह रहे थे इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं किया, हालांकि उस टाइम स्टार्टअप पॉपुलर भी नहीं था, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। मेरा अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव था कि मुझे वो जॉब्स नहीं करनी जो लोग कर रहे हैं, इसलिए मुझे स्टार्टअप करना है, तो इसलिए मैंने स्टार्टअप किया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपका भी अपना इंस्पिरेशन हो सकता है। देखो, इंस्पिरेशन में कभी ये मत सोचो कि हम ये नहीं बोल सकते वो नहीं बोल सकते, इंस्पिरेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका इंस्पिरेशन बहुत पैसा कमाना हो सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है सोचना, ठीक है। आपका इंस्पिरेशन हो सकता है कि यार मुझे बहुत लोगों को, आपको पता है कंट्री में जॉब की प्रॉब्लम है, आपका इंस्पिरेशन हो सकता है मुझे बहुत लोगों को जॉब देनी है, वो आपका इंस्पिरेशन हो सकता है। आपका इंस्पिरेशन हो सकता है मुझे यार अपने एरिया का डेवलपमेंट करना है, कुछ भी हो सकता है। दैट इज योर इंस्पिरेशन, ठीक है। आप उसको लो और उस पर अपना स्टार्टअप शुरू करो। बट कभी भी मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट से, इसलिए स्टार्टअप मत करो बिकॉज लोग आपको बोल रहे हैं या आप मीडिया में सुन रहे हो, या चार कोई मोटिवेशनल लोग आपको आके बोल देते हैं कि नहीं स्टार्टअप करो स्टार्टअप करो, अभी तो स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी दुनिया है। कोई बड़ी दुनिया नहीं है, वही सक्सेस है वही फेलियर्स हैं, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव दैट इन योर माइंड। what are the initial perspectives to keep in mind to start the startup? चंद्र मोहन जहांगीर, मैंने जैसे अभी पहले बताया कुछ प्रोज एंड कॉन्स, तो उसमें से जो कॉन्स है वो आप ध्यान रखो। अनसर्टेनिटी रहती है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको मतलब बेसिकली स्टार्टअप इज अ कंप्लीटली अनसर्टन डोमेन, हो सकता है अगले महीने क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता, राइट। तो स्टार्टअप के सबसे बड़े चीजें वो ध्यान रखना जरूरी है, और एक बैकअप होना जरूरी है। आपका बैकअप क्या है वो आप ध्यान में रखो, उसके बाद आप ये बेसिक चीजें ध्यान रख के कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज जो चंद्रमोहन आपको ध्यान में रखनी होगी कि मैं रिसर्च ढंग से करूं, जो मैं करना जा रहा हूं क्या वैसे 10,000 लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, हो सकता है यूएस में कर रहे हैं, हो सकता है यूरोप में कर रहे हैं, हो सकता है अफ्रीका में कर रहे हैं, बट कर रहे हैं क्या? अगर हाँ तो मुझे थोड़ा ट्वीक करने की जरूरत है ताकि मेरा सोल्यूशन यूनिक बन जाए, ठीक है। तो ये रिसर्च ढंग से करो कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले। होता क्या है ना, हम आसपास देखते हैं कि जैसे मान लो आपके 10-12 दोस्त हैं, अब आपके 10-12 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, यार मुझे ना एक रेस्टोरेंट है दिल्ली में बड़ा अच्छा, लेकिन वहां से मुझे ना ऑर्डर नहीं कर पा रहा हूँ मैं कुछ, या मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ वहां से, ठीक है। आपके दिमाग में आएगा अरे यार ये 10 लोगों की ये प्रॉब्लम है, हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, आप काम करना शुरू कर दोगे। वो मत करना, आप पहले रिसर्च करो कि क्या ऐसी कोई सर्विस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर हाँ तो आपको उस पर काम नहीं करना चाहिए आइडियली। अगर उससे कुछ बेटर बना सकते हो तो करो, बट अगर आपको लगता है कि मेरा पूरा आइडिया जो मैंने सोचा है वो एज इट इज अवेलेबल है, तो आपको कुछ दूसरा या कुछ यूनिक सोचना पड़ेगा। ये बेसिक पर्सपेक्टिव्स हैं। एक लास्ट ले लेते हैं, आई थिंक टाइम इज रनिंग आउट, मुझे आई ऑल्सो हैव अ मीटिंग। सर, so should we acquire customers first and do not create a handsome revenue, or is it we have to do both? You have to do both simultaneously, अमन। किसी भी बिजनेस का बेसिक रूल ये है, कस्टमर एक्वायर करने करो बट रेवेन्यू आना चाहिए, ठीक है। आप ये हमेशा ध्यान रखना, ये स्टार्टअप भी एक बिजनेस ही है। जैसे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर वाला अपनी स्टोर खोलता है तो उसको पहले दिन से रेवेन्यू चाहिए, वो फ्री में तो आइटम बांटता नहीं है। तो आप भी अगर कोई टेक्नोलॉजी कंपनी बना रहे हो तो आपके पास रेवेन्यू का सोर्स होना चाहिए। बिकॉज देखो मैं आपको एक ऑनेस्ट सी बात बता देता हूँ, आजकल के टाइम पे आप में से एक जने ने बोला था कि सर कंपटीशन बहुत है, तो कंपटीशन बहुत है, ठीक है। बहुत लोग स्टार्टअप कर रहे हैं और बहुत लोग इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं। मेरे पास ही दिन में 5-7 लोग आ जाते हैं, सर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए इन्वेस्टमेंट चाहिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो उस कंपटीशन में घुस के अपना मार्क बनाना है आपको। और मैं कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा 2-4 लोगों में इन्वेस्ट कर देता हूँ। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं सोचो उनके पास कितनी पिचेस आ रही होंगी, कितने डेक्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास अपना रेवेन्यू है, अपने मॉडल को, बिजनेस मॉडल को वैलिडेट करने के लिए, प्रूव करने के लिए, नथिंग बेटर देन दैट, ठीक है। तो जिन लोगों ने कस्टमर्स एक्वायर करना शुरू कर दिया है, क्रेड हो गया, पेटीएम हो गया, इनको भूल जाओ। इनका ये रेयर केसेस है जिनको इन्वेस्टमेंट मिल गया और इसमें बहुत ज्यादा खिचड़ी पकी हुई है जिसकी वजह से इनको इन्वेस्टमेंट मिला है, ठीक है। आपका पहला मोटिव ये होना चाहिए, कस्टमर्स विद रेवेन्यू, दैट हैज टू बी योर मोटिव। दोनों चीजें साथ में आनी चाहिए। कितना रेवेन्यू आ रहा है दैट इज नॉट, दैट इज इमटेरियल, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है, बट कस्टमर रेवेन्यू हैज टू बी द केस, ठीक है। ये हमारा ध्यान रखना। एक लास्ट, स्पर्श गुप्ता, आपका कोई क्वेश्चन आया नहीं है, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है बट कोई क्वेश्चन आया नहीं है आपका। I hope all questions have been answered, but स्पर्श का एक कुछ कमेंट आया है Q&A में, बट स्पर्श आपका क्वेश्चन नहीं है वहां पर।
आपको अगर आप लोगों को फिर भी अगर क्वेश्चंस हैं तो आई एम जस्ट पुटिंग माय लिंक्डइन आईडी इन चैट. आप लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट करके और वहाँ चैट में आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं इफ यू वांट. ठीक है, तो मैं ये चैट में लिख देता हूँ आपको. ठीक है, आई होप आई वाज एबल टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चन. और जो मेरी जर्नी और एक्सपीरियंस रहा है, आई होप कि आप लोगों को उससे कुछ लर्निंग्स मिले और उसके बेसिस पे आप करो. एज आई सेड अर्लियर, please consider startup as another career choice. If you really want to do it, but don't do it because there is peer pressure or there's pressure from others that वो भी entrepreneurship कर रहे हैं तो हमें भी entrepreneurship करनी है, right? That is my biggest advice to all of you. And always create a business which has a good business model, because ultimately सब business है. देखो, startup भी business है, normal business भी business है. बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, रेवेन्यू जनरेशन अच्छा होना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी. Okay, sir. Thank you very much, sir. In this short span of time, you well explained about entrepreneurship. It was really a knowledgeable and motivational session for the participants engaged in the development of new concepts and products. This session definitely will help them to find new ideas for innovation by improving their entrepreneurial capabilities. I assure you that this session will provide an exposure to all the student participants in terms of enhancing their skill and knowledge about entrepreneurship. Also, very special thanks to all precious student and faculty members to make this session meaningful. Thank you very much, sir. Thank you.